Ratna Bhushan, friend motivator and guide to IAS aspirant, international motivational speaker, leadership trainer, CEO, coach, political strategist, and policy advisor. ब्रह्माण्यध्याय कर्माणि तक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र विमानाभ्याम श। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है वह पाप कर्मों से उसी प्रकार प्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। The most important news of today's are India Central Asian Republics call for destructions of the terror safe havens. Delhi announces an additional $1 billion line of credit for the region. The Central Asian Republics joined India on Wednesday in demanding destructions of the safe havens of terrorism. The second meeting of the India Central Asia Dialogue jointly expressed support for the peace negotiation in Afghanistan, which is expected to use source in new aid for the war-torn country. The minister strongly condemned terrorism in all its forms and manifestations and reformed the determinations of their countries to combat these menaces by destroying terrorist safe havens, network infrastructure and funding channels. They also underlined the need for every country to ensure that its territory is not used to launch terrorist attacks against other countries, said a joint statement issued after the meeting. Delivering his opening remarks, External Affairs Minister S. Jaishankar described the Central Asian region as India's extended neighborhood. Among the key takeaways from the meeting was the announcement of an additional $1 billion line of credit by India for the Central Asian country. It is expected that the money will be spent for the major infrastructure and connectivity projects. Chabahar Port. The joint statement highlighted the appreciations from the Foreign Minister of Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, and the First Deputy Foreign Minister of Kyrgyz Republic for India's effort to modernize the infrastructure of the Chabahar Port in Iran, which could become an important link trade and transport communication between markets of Central and South Asia. Countering deep fakes, the most serious AI threat. It is crucial to enhance media literacy, meaningful regulations and platform policies, and amplify authoritative sources. Disinformations and hoaxes have evolved from mere anonymous to high-stake warfare for the creating social discord, increasing the polarizations and in some cases influencing an election's outcome. Deep fakes are now a new tool to spread computational propaganda and disinformation at scale and with speed. Access to commodity cloud computing, algorithm, and abundant data has created a perfect storm to democratize media creations and manipulations. Deepfakes and the digital media, video, audio, and images manipulated using artificial intelligence. The synthetic media content is referred to as a deepfakes, a cyber Frankenstein. Synthetic media can create a possibility and opportunities for all people, regardless of who they are, where they are, and how they listen, speak, or communicate. It can give people a vast purpose to ability to make an impact at scale with speed. But as with any new innovative technology, it can be weaponized to inflict harm. The challenges of walking the Indo-Pacific talk. Encountering China, India must know the strategic talk alone cannot trump overriding economic realities. Trade in the neighbors, 2018 and 19. Main countries, India and China, Australia, New Zealand, United States. The recently concluded third annual United States 2+2 ministerial dialogue has amplified the ongoing conversation in India on the quadrilateral security dialogue, the Indo-Pacific, the threat from China and the United States as a potential alliance partner, and now strategic vision has captivated India's foreign policy mandarins and strategic community in recent times as
have the Indo-Pacific and the Quad. The international community has once again decided to court the New Delhi to play a decisive role in shaping the region's strategic future. While during the mid 2000s, the world expected India to be an economic powerhouse. A decade later, those expectations remain modest at best. The expectation this time is more strategic and military to lead this charge against China within the region. Will India and can India fulfill these expectations? राम मंदिर पर बोले प्रधानमंत्री, पूछते थे अब तालियां बजाते हैं। जो पूछते थे अब तालियां बजाते हैं। दिस ऑल न्यूज़ आई हैव टेकन फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर, दैनिक जागरण एंड नवभारत टाइम्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बिहार के दरभंगा सहित 3 जगहों पर चुनावी रैली की। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान किसी दल का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा जिन लोगों का प्रशिक्षण ही बांटकर राज करने और कमीशन खोरी का हो, वे बिहार के हित में कभी सोच नहीं सकते। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा, वे सियासी लोग जो बार बार हमसे तारीख पूछा करते थे, वे बहुत मजबूरी में हैं। आज वे लोग भी तालियां बजा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीते 15 वर्षों में बिहार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ा है और आज माँ सीता अपने नहर मायका को तो प्रेम से भी निहार रही होगी। उन्होंने कहा कि अयोध्या पर भी आज नज़र होगी, क्योंकि सदियों की तपस्या के बाद आखिरकार अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री ने यूपीए सरकार पर कोसी महासेतु का काम लटकाने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र में एनडीए की सरकार बनने के बाद कोसी महासेतु का काम कई गुना तेजी से हुआ। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के पूरा होने से 300 किलोमीटर की दूरी 20 से 22 किलोमीटर तक सिमट गई है और अब 8 घंटे की यात्रा सिर्फ आधे घंटे में ही पूरी होनी होगी। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के व्यापक रोड मैप का अगला चरण आत्मनिर्भर भारत बिहार, आत्मनिर्भर मिथिलांचल। अमेरिका के साथ आने से तिलमिलाया चीन। भारत के साथ हर स्थिति में खड़ा होने का अमेरिकी ऐलान चीन को बिल्कुल रास नहीं आया। असलियत में सिर्फ भारत को ही नहीं, बल्कि अमेरिका ने जिस तरह समूचे दक्षिण एशिया में बेहद सक्रिय होने का संकेत दिया है, उससे चीन की सरकार एकदम सजग हो गई है। नतीजा, चीन के ने बेहद आक्रामक प्रतिक्रिया भी देना शुरू कर दिया। मंगलवार को भारत और अमेरिका के बीच हुई 2+2 वार्ता में चीन को लेकर किए गए इशारों का बुधवार को नई दिल्ली स्थित उनके दूतावास ने पहले एक तल्ख प्रतिक्रिया जारी की और इसके कुछ घंटे बाद चीनी विदेशी मंत्रालय ने एक बयान जारी किया। दोनों बयानों में अमेरिका को परोक्ष तौर पर चेतावनी दी गई है कि वह भारत चीन के द्विपक्षीय मुद्दों में दखल अंदाजी न करे। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा, अमेरिका इस क्षेत्र में शीत युद्ध वाली मानसिकता के साथ काम कर रहा है। हिंद प्रशांत रणनीति के साथ अमेरिका अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। क्षेत्रीय मुद्दों में दखल देने की अमेरिकी कोशिश का उल्टा असर होगा। जहां तक भारत चीन सीमा विवाद का सवाल है, तो अभी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति काफ़ी सामान्य है और दोनों देश आपसी बातचीत से पहले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। चीनी दूतावास की तरफ से कहा गया कि भारत चीन सीमा विवाद सुलझाने में सक्षम है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने जिस तरह भारत में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का नाम लिया, उससे भी चीन सरकार काफ़ी नाराज है। लद्दाख को चीन का हिस्सा दिखाने पर ट्विटर को संसदीय समिति की फटकार। संसदीय समिति ने लद्दाख को चीन का हिस्सा दिखाने पर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को फटकार लगाई है। समिति का कहना है कि यह कृत्य राजद्रोह जैसा, इस पर मूल अमेरिकी कंपनी को लिखित स्पष्टीकरण देना होगा। गुलाम कश्मीर गिलगिट बाल्टिस्तान को सऊदी अरब ने पाक के नक्शे से हटाया। सऊदी अरब ने गुलाम कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से हटा दिया है। गुलाम कश्मीर के एक कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा ने बुधवार को ट्वीट कर जानकारी दी। इसके साथ उन्होंने एक तस्वीर भी ट्वीट की, जिसके नीचे उन्होंने लिखा, सऊदी अरब की ओर से भारत को दिवाली का तोहफा। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक 21 से 22 नवंबर को अपनी अध्यक्षता में आयोजित हो रहे G20 सम्मेलन की याद के रूप में सऊदी अरब ने 20 रियाल का बैंक नोट जारी किया है। इस नोट पर छपे दुनिया के नक्शे में गिलगिट बाल्टिस्तान और गुलाम कश्मीर को पाकिस्तान के हिस्से के रूप में नहीं दर्शाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है, सऊदी अरब का यह कदम पाकिस्तान को अपमानित करने के प्रयास से कम नहीं है, जो खुद को अपने नए ब्लॉक में ढालने की कोशिश कर रहा है। मालूम हो कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने सितंबर में कहा था, उसने तथाकथित गिलगिट बाल्टिस्तान विधानसभा के लिए 15 नवंबर को होने वाले चुनाव के संबंध में रिपोर्ट देगी। खिलौने के बाजार में चीन को पटकनी देने के लिए कई राज्यों ने तैयारी की।
बच्चे अब चीन नहीं बल्कि पूरी तरह से भारत में निर्मित खिलौने खेलेंगे। इस दिशा में जोर शोर से तैयारी चल रही है। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय चीन से आयातित खिलौनों की आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा सकता है। खिलौने निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए देश में कई क्लस्टर बनाने की योजना है। आयात पर प्रतिबंध लगाने पर भारतीय कंपनियां घरेलू स्तर पर निर्माण को प्रोत्साहित होगी। कर्नाटक सरकार ने कोप्पल टाई क्लस्टर की घोषणा भी कर दी है, जहां अगले 5 साल में 5,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम और उत्तर प्रदेश में विशेष प्रकार के खिलौने के निर्माण के लिए क्लस्टर बनाने की योजना है। उत्तर प्रदेश में बनारस के अलावा सरकार ने ग्रेटर नोएडा में भी टॉय क्लस्टर के विस्तार के लिए जमीन की पेशकश कर दी है। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने खिलौना उत्पादन को भी प्रमुख सेक्टर में रखा है। कुछ महीने पहले चीन से आयातित खिलौने पर शुल्क में 200% की बढ़ोतरी की गई, जिससे वहां से खिलौना आयात घटा है। बदल जाएगी अलगाववादी नारों की तकदीर। जम्मू कश्मीर में सभी भारतीय नागरिकों को जमीन खरीदने की आज़ादी मिलने पर पूरा देश एक स्वर में खुशी जता रहा है। प्रदेश का आम नागरिक इसे नई उम्मीद के तौर पर देख रहा है, लेकिन कश्मीर के कुछ सियासी दल प्रदेश को बिक्री पर लगाने पर आरोप लगा प्रलाप कर रहे हैं। स्थानीय भावनाओं के कारण शोषण की सियासत के बहाने सत्ता के महल खड़े करने वाले दलों के लिए बहुत बड़ी झटके से कम नहीं हो चुकी। इस फैसले के बाद उन्हें अपनी पूरी तरह सियासत बदलनी होगी। दरअसल कश्मीर में प्रतिवर्ष 10 लाख के करीब लोग रोजगार के लिए अन्य राज्यों से आते हैं। यही लोग यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, लेकिन अब तक द्वितीय श्रेणी के नागरिक बन रहे। ऐसे में हर साल बर्फबारी के बाद घर लौट जाते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार सार्वजनिक उपक्रमों, निजी उद्यमों में कार्यरत लोगों को भी कभी प्रदेश में नागरिक होने का हक नहीं पा सके। इनकी भावनाएं और आवाज़ कभी जम्मू कश्मीर की सियासत में जगह नहीं बना सकी। मगर अब नए कानून के आने के बाद अगर इस आबादी का एक हिस्सा कश्मीर में बस जाता है तो अलगाववाद की सियासत कर देश को ब्लैकमेल कर मलाई खाने वाले नेताओं को अपनी भाषा बदलनी होगी। मुख्य धारा की ओर कश्मीर। जम्मू कश्मीर में देश के किसी भी नागरिक को घर, दुकान बनाने और कारोबार शुरू करने के लिए जमीन खरीदने की सुविधा देकर केंद्र सरकार ने इस राज्य को मुख्य धारा में लाने के लिए साथ साथ वहां विकास की प्रक्रिया को गति देने के लिए एक बड़ी पहल की। भेदभाव एवं अन्याय के साथ साथ अलगाववाद को बढ़ावा देने वाले अनुच्छेद 370-35A को खत्म करने के बाद ऐसा कोई फैसला लिया जाना प्रत्याशित ही था।